studying about the sound waves. Now, what is sound waves? In order to study that, first let us understand what is sound. What is sound? Sound is a form of energy which makes you to hear, right? Sound is there. If a body is vibrated, sound is produced. That we have learned in the earlier classes also. If you vibrate the bell, bell starts ringing. If you vibrate anything, the vibrations will produce sound if it is in a mechanical medium. Now, what is the nature of the sound? In terms of the nature of the waves. Now, whenever I talk about the nature of the sound waves, so it is longitudinal in nature. What is the audible range of the frequency to the human ear? You can hear any audible frequency, that is the sound waves, which is in the range of 20 hertz to 20,000 hertz. Okay. Now, above frequency, if it is more than 20,000, then it will be called as the ultrasonic sound. And it is a sound, right? Try to understand the frequency is increasing. Wavelength will definitely decrease. But if the medium remains the same, the sound's velocity remains same. Now, if I say the velocity of the sound in air, the velocity of the sound in air at 0 degrees centigrade, if I say that it is 332 meters per second, so that is true for 20 hertz wala sound. It is true for 20,000 wala sound. It is true for the ultrasonic sound. It is also true for infrasonic sounds. Infrasonic sounds means it is the frequency which is less than 20 hertz. Right. Now, in air at 0 degrees at a normal temperature and pressure, it is giving you the value of 332 meters per second. This is a standard value. If the temperature increases or something else changes, definitely this value is also going to change. Okay. Now, in various medium, the speed of the sound will be the different values. In solids, the speed of the sound is maximum. In steel, approximately, it will be approximately 5,000 meters per second. In water, it is something like 1,400 meters per second. So I'm saying approximately because water, if it is sea water, it is different. If it is river water, it is different. Right? Because it all depends upon the amount of the salt or maybe whatever the impurities which is present, right? Now, if I talk about the suprasonic speed, it is the speed of not sound, it is the speed of the object. If you have the speed of the object, which is, if I say it is more than, if it is more than speed of the sound, then in that case, you will say that it is equal to, let me say, what is supersonic sound? Supersonic sound means if an object is having a speed which is more than the speed of the sound in air, like jet planes, like bullets, or maybe something other things. Like if the speed itself is more than the speed of the sound, then the body is said to have supersonic speed. The suprasonic objects, that means the object which is having a speed which is more than the speed of the sound in air, that will produce the shock waves. Right? So shock wave produce करने वाले जो भी jet planes वगैरह हैं, उनको फ्रेजाइल बिल्डिंग के ऊपर में से उड़ने की इजाजत नहीं है. खजुराहो के ऊपर से नहीं उड़ सकता, पुरी के बिल्डिंग के ऊपर से नहीं उड़ सकता. ठीक है? Okay. Now let us talk about the Newton's formula for the speed of the waves. Okay. Now Newton, the great scientist, he said that whenever we talk about the speed of the sound depends upon the elasticity of the medium and also the density. Right, that we have discussed in the last class also. So the two important facts about the mechanical waves, he said that it depends upon the elasticity of the medium and it also depends upon the density of the medium, the factor which is the inertia factor of that particular medium, right? So he gave a formula which was valid for solids, which was valid for liquids. What he said? He said that for any bulk matter, the velocity of the sound is given by
the square root of the bulk's modulus divided by the density. For any of the fluids also, he said that V is equal to the bulk's modulus divided by density. It is true. This is the theoretical value. What was Newton's formula? The Newton formula is theoretical. Based on the theory, he gave this formula. Based on the theory, he gave this formula, right? But when it was measured experimentally also, we found that this particular formula was true, right? So whenever we had a string, in the string, we don't consider the bulk's modulus. What do we consider? We consider the Young's modulus of the density of the material of which the wire is made. Okay. Now, Newton said that if it is true for solids, that if it is true for liquids, then it should be true for gases also. He extended that formula. He said, भैया चलो इसको हम गैस में भी लगा लेते हैं. तो गैस में इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया? सेम फॉर्मूला. तो he said that Newton's velocity of the sound in any gas, he said that V is equal to bulk's modulus of the gas. Piyush, bulk's modulus of the gas for different materials will be different. The density also for every gas, it is different. If you say about hydrogen, it is a very, very light gas. But if you consider carbon dioxide for that matter, it should be comparatively heavy. Right? So comparatively heavy means the molecular mass is equal to how much, Picha? Molecular mass of carbon dioxide? 44 units, right? And if you take it as water is 18 units. If it is something else, then it will be having a different density, right? So it depends upon the bulk's modulus of that gas and also the density. Okay, fine. All said and done. So then he said that, okay, so we will apply this Newton's law for the Boyle's law. See, whenever I talk, आप मुझे बताएं, जब भी मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, साउंड जा रहा है, किसमें ट्रैवल कर रहा है? एयर में ट्रैवल कर रहा है. एयर इज अ गैस. क्या इस कमरे की टेम्परेचर बदल रही है? तो भाई नॉर्मली जो इंसान सोचेगा भैया कि जब भी कोई साउंड ट्रैवल करता है किसी भी गैस में तो टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है. तो वो कौन सा कंडीशन माना जाएगा? आइसोथर्मल माना जाएगा. तो न्यूटन भाई साहब ने भी कंसिडर कर लिया कि भैया कि गैस जब ट्रैवल कर रहा है तो आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रैवल कर रहा है. तो उन्होंने फटाफट लगा दिया कौन सा लॉ लगा दिया उन्होंने बॉयल्स लॉ लगाया. अब बॉयल्स लॉ लगाने के बाद में बोला कि भैया चलो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम. अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? With respect to volume. आपको पता है ना, P is a variable, V is a variable. अरे प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, तो दोनों ही वेरिएबल है. अब दो चीज वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. अरे भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है. अब लगा लिया भैया. अब इसमें हमने डीवी दोनों में था, इसको पकड़ के टक 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 कैंसिल. बचा क्या? पीडीवी इज इक्वल टू प्लस वीडीपी दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 0. अब भाई प्रेशर को यहाँ रख, बाकी सबको यहाँ लेके हो जाएगा ना, माइनस वी डीपी बाय डीवी. अब ये वी को भी उठा नीचे लेके आ जा. अरे चेंज इन प्रेशर, व्हाट इज इट? फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस. और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. भैया स्ट्रेन. कौन सा स्ट्रेन? तो बोले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? बल्क's मॉडुलस है ना. इसको नेगेटिव क्यों बोला? प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम को कम हो गया है ना, तो इसलिए नेगेटिव आ गया. तो हमने क्या कहनी है कि बल्क's मॉडुलस जो होगा उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? न्यूमेरिकली देखा जाएगा तो वो प्रेशर है. बात समझ में आ गई सबको? तो भैया हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस क्या था? बोले V इज इक्वल टू बल्क's मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी. अब ये भी क्या कैलकुलेट किया? बल्क's मॉडुलस क्या? बल्क's मॉडुलस प्रेशर लगा दो भैया. बल्क's मॉडुलस की जगह क्या लगा दोगे? बोले प्रेशर लगा दो बाय डेंसिटी. फॉर्मूला साहब ने दे दिया, न्यूटन अंकल ने.
बोला velocity of the sound in any gas is equal to the square root of the pressure divided by density of the gas. All said, all correct. चलो अब लोगों ने क्या कहा, चलो न्यूटन अंकल तो फॉर्मूला दे दिए, चलो वैल्यू बिठा के देखते हैं, सही आना चाहिए। तो ये लोग बोले चलो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलते हैं, सी लेवल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलते हैं। और कहां चलते हैं, बोले सी लेवल पर, और वहां पर हम ये फॉर्मूला निकाल करके देखते हैं। सी लेवल पर प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मेजर बताते हैं ना अपन प्रेशर के बारे में जब पढ़े थे, तो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 76 स्टैंडर्ड माना जाता है। डेंसिटी ऑफ एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोले 1 मीटर क्यूब अगर गैस ले लो तो उसकी जो मास होती है वो होती है 1.293 दैट मच ऑफ केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी मिल गई हमें, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी होता है ना, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू रो इंटू जी। मैंने कहा 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, तो हमने क्या लिखेंगे 76 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, 0.76 हो गया, है ना। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है भैया, बोलो 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 दैट मच ऑफ केजी पर मीटर क्यूब होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच रो जी के लिए जी लेना पड़ेगा 9.8, और यहाँ डेंसिटी आपने जो मेजर्ड वैल्यू रखी थी इसको लिखी, कैलकुलेशंस किया गया और पाया कितना गया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल प्रेशर कितना पाएगा, 280। ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है न्यूटन अंकल की थ्योरी के अनुसार। अब मेजर भी तो करे होंगे ना, तो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू मैंने पहले भी बोला था आपको, कितना था 332 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, मेजर्ड वैल्यू माना जाएगा ना सही, कि एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकल वैल्यू को माना जाएगा, थियोरेटिकल वैल्यू तो थियोरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सही माना जाएगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, तो दैट इज इक्वल टू 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 332 परसेंटेज निकाला एरर का। तो करेक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द करेक्ट वैल्यू इनटू 100, यही करते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू निकाला, तो ये जो एरर निकला वो निकला 15.7। अरे बाप रे, कितना परसेंटेज एरर मिल गया, 16%। एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज जो एरर माना जाएगा वो 1 to 3%, ज्यादा से ज्यादा 5% ले लो। ये क्या है भैया, 16% एरर बोल के सही है बोलोगे, कैसे थोड़ी चलेगा, चलेगा क्या, बोलो ना, नहीं चलेगा ना, तो नहीं चलेगा। अब किसकी हिम्मत न्यूटन को बोले न्यूटन साहब आप गलत है, नहीं बोल सकते भैया। जो फॉर्मूला सॉलिड के लिए सही निकला, जो फॉर्मूला लिक्विड के लिए सही निकला, वो गैस के लिए क्यों गलत है। अब न्यूटन को चैलेंज करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो न्यूटन चैलेंज नहीं किए, उन लोगों ने कहा भैया एरर तो है, इतना बड़ा जो मिस्टेक है उसको हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, न्यूटन ने जो थ्योरी लगाई होगी उस पे कोई ना कोई त्रुटि जरूर होगी। त्रुटि मतलब मिस्टेक्स, एरर छोटा सा। तो न्यूटन का क्या कंसिडरेशन था, न्यूटन का क्या कंसिडरेशन था, जब साउंड जब ट्रैवल कर रहा था गैस में, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था कि आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रैवल कर रहा है। तो लैप्लेस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका एक मिनट ये जो आ गया कुछ और, एक मिनट शेयर करती हूँ प्रॉपर्ली स्क्रीन को। हाँ, ये आ गया आपका। सो आपने क्या देखा कि मतलब ये जो गैस में साउंड जब ट्रैवल कर रहा था, अच्छा साउंड का नेचर बोलो रे, साउंड का नेचर क्या है, वेव तो है, लेकिन कौन सा नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या बनता है, कंप्रेशंस, रैडिफ्रैक्शंस, कंप्रेशंस, रैडिफ्रैक्शंस, कंप्रेशंस, रैडिफ्रैक्शंस। अच्छा, कंप्रेशंस कितना होता है, चलो मेरी वॉइस का ले लो, 12,000 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। अब मतलब एक सेकंड में जो एयर है 12,000 बार कंप्रेस और 12,000 बार
rarefaction, 12,000 बार कंप्रेशन rarefaction, कंप्रेशन rarefaction होता जाएगा। अब जब ये कंप्रेशन rarefaction होता जाएगा तो भैया जहां पर कंप्रेस हुआ गैस तो गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सोचो, होगा रितिका? होगा। कंप्रेस होगा, इसका मतलब क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जहां पर रैरिफ्रैक्शन होगा तो एक्सपैंड हो गया, तो एक्सपैंड हो गया तो ठंडा हो गया। अभी ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, हाँ। लेकिन ये हो रहा है कि क्या हीट एक्सचेंज के लिए समय मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या हीट एक्सचेंज के लिए समय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हीट एक्सचेंज के लिए समय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन आइसोथर्मल कहाँ की हो गई? हमने क्या पढ़ा था? आइसोथर्मल एडियाबैटिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहता है, हीट एक्सचेंज धीरे धीरे होता है। एडियाबैटिक कंडीशन इसका मतलब है कि हीट अंदर बाहर नहीं हो सकता, एक ऐसा सिस्टम है। या फिर हमने एक और चीज डिफाइन करी थी कि अगर कोई चीज इतना जल्दी हो रहा है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए समय नहीं मिल रहा तो वो भी कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे? वो भी कौन सा कंडीशन माना जाएगा? वो भी कंडीशन जो माना जाएगा वो कंडीशन माना जाएगा एडियाबैटिक। तो लैप्लेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि is that when sound is traveling in a gas, it is undergoing the adiabatic change. The compression and rarefaction happen so fast, there is no time for heat exchange. तो हमने क्या लगानी है? PV raised to the power of gamma is equal to constant बोलेंगे। PV raised to the power of gamma is equal to constant बोलेंगे। और यहाँ हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया with respect to volume. So PV raised to the power of gamma, that is given as P d by dV of e to the power of gamma plus v to the power of gamma into dP by dV, that is equal to 0. Again हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। सो बेटा प्रेशर तो वैसे ही रह गया, v to the power of gamma। मुझे पता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? x to the power of n का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चा लोग। n x to the power of n minus 1। वेरी गुड। तो आपने ये वाली फॉर्मूला लगानी है। यहाँ पर n की जगह आपके पास में क्या है? गामा। तो गामा सामने आ जाएगा, गामा माइनस 1 यहाँ रह जाएगा, प्लस आ जाएगा v to the power of gamma dp by dv that is equal to 0। फिर से हमने यहाँ पर dv को यहाँ पर लेके गए और इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर dv नहीं आएगा, यहाँ पर dp by dv रहेगा। तो आपने यहाँ पर v to the power of gamma को यहाँ ले लिया तो वैल्यू कितनी आई? तो हमने कहा गामा इंटू पी v to the power of gamma minus 1 माइनस गामा रेज टू the power v raised to the power of gamma dp by dv। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पर dp by dv आपके पास है। तो P यहाँ रह गया, v to the power of gamma minus 1 यहाँ लग दिया। तो आपने गामा को ऊपर, गामा माइनस 1 को ऊपर लेके गए तो आपने ये गामा गामा कैंसिल कर दिया। आपको क्या मालूम? तो गामा इंटू पी इज इक्वल टू माइनस डीपी बाई डीवी। हमने, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ v बच रहा है बेटा। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? v बच रहा है, dp बाई dv बच रहा है। हमने v उठाया और यहाँ पर हमने गामा को नीचे डाल दिया तो हमको मिला गामा इंटू पी is equal to minus dp by dv by v। तो dp क्या है बच्चा? dp क्या है? स्ट्रेस। और dv by v क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमने कहा इसको बोला बल्क्स मॉडुलस। अब फिर चेंज करो तो v is equal to बल्क्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एक्चुअली पिछले वाले इसमें न्यूटन के फॉर्मूला में हमने बल्क्स मॉडुलस को सिर्फ प्रेशर लिखा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दैट इज गामा इंटू पी। तो हमने इसको स्प्लिट किया तो रूट ऑफ गामा इंटू रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय डी। तो हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखी थी पिछले वाले इसमें 280 था। और गामा फॉर एयर इट इज इक्वल टू 1.41 वैल्यू लगाया और कैलकुलेट करने पर क्या पाया? कैलकुलेट करने पर ये पाया कि हमारे पास में द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू 332.5 इतना मीटर्स पर सेकंड व्हिच इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया? तो बोले ये हमारा सही हो गया है। ठीक है, तो कौन सी वाली फॉर्मूला सही थी कि गैस पे जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो एडियाबैटिक चेंज होता है, वो आइसोथर्मल चेंजेस नहीं होता है। तो ये बात अपने पास प्रूफ हो गई। एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यू दोनों।